Assalamualaikum. This is category theory lecture series. So today we will see some definitions related to category theory. So first of all, the definition of isomorphism in category theory. Okay. So let's read this definition and then explain. An isomorphism in a category is a morphism. ठीक है, एक morphism है f from x to y is an isomorphism in a category C. ठीक है, category C के अंदर एक ही isomorphism है for which कब जब there exists a morphism G from Y to Z. If G is a morphism from Y to Z, there exists a morphism such that, ठीक है, फिर क्या होगा, such that के G of F करें तो this is equal to ID on X होगा and F of G, if F of G करें so this is equal to ID on Y. Okay. According to this definition, the objects X and Y are isomorphic, denoted by this, and the morphism fx to y is isomorphism if it extends to the isomorphism, in which case this is written as this x to y isomorphic. This is isomorphism denoted by this and denoted by also this. Okay, we can write in this form also and this is this form also. So let's see in this definition. So they are saying that C is a category, okay, and there is a morphism F from X to Y, okay, in category C, okay. X and Y belongs to the objects of कैटेगरी सी, ठीक है, ये है, और मॉर्फिज्म बिलोंग करता है कि ऑब्जेक्ट्स मॉर्फिज्म ऑफ कैटेगरी सी, क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्लास ऑफ मॉर्फिज्म्स है, ठीक है. So this is isomorphism if there exists an morphism G from Y to Z, ठीक है, and such that कि f of G करें, if f compose G we get ID on Y, and if G compose F करें so we get ID on X, and we can say X is isomorphic to Y, and F is written as in this type, and F also we can write in this form. Okay, so this is isomorphism in category. ठीक है, सो कैटेगरी के अंदर किसी भी आपके पास कैटेगरी सी है तो उसके अंदर आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या जरूरी है कि एक मॉर्फिज्म हो एफ फ्रॉम एक्स टू वाई. सो देयर आल्सो एग्जिस्ट अ मॉर्फिज्म फ्रॉम वाई टू एक्स, सॉरी ये साइड नहीं, वाई टू एक्स हो सच दैट के हम अगर जी कंपोज एफ करें सो वी गेट आईडी ऑन वाई हो, और अगर एफ कंपोज जी करें सो वी गेट आईडी ऑन एक्स हो. सो वी कैन से कि x is isomorphic to y and f is a morphism from x to y, okay, which is isomorphism. Okay, this is isomorphism and this they are isomorphic. So let's read again the book what they are saying. फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि endomorphism, what is the definition of endomorphism. So endomorphism क्या है? A morphism whose domain is equal to the codomain means के F is a morphism and whose domain and codomain are equal. That is an isomorphism, or isomorphism. So we can say that this is automorphism. Okay, so let's see again this definition. Endomorphism क्या होता है? अगर आपके पास कोई endomorphism हो, ठीक है, if f is a morphism from x to x means domain and codomain are equal, and this is isomorphism, which means that there exists g such that g भी क्या है, x से x तक है, such that के f of g करें id on x होगा and g of f करें which also is id on x because both are the domain and codomain are equal. So we can say that this f is automorphism. Okay, ऑटोमॉर्फिज्म कब होगा, कैसा आइसोमॉर्फिज्म, जिसके अंदर को डोमेन और डोमेन क्या हो, सेम हो. So let's see again the paper, sorry, the book.
अच्छा, अब देखें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड। कि अगर कह रहे हैं कि द आइसोमॉर्फिज्म इन अ कैटेगरी ऑफ सेट्स आर बाइजेक्शन, ठीक है। अब अगर आपके पास कैटेगरी ऑफ सेट हो तो उसमें जो आइसोमॉर्फिज्म्स होंगे वो बाइजेक्शन की तरह बिहेव करेंगे। अगर इफ वी हैव अ कैटेगरी ऑफ ग्रुप और कैटेगरी ऑफ रिंग और फील्ड और मॉड्यूल्स, सो वी हैव ग्रुप आइज होमोमॉर्फिज्म होंगे, ठीक है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव भी हो और होमोमॉर्फिज्म हो। सो बाइजेक्टिव और होमोमॉर्फिज्म होने का मतलब क्या है? ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं उसको, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म या रिंग आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, ओके। And if we have the isomorphism in category of top topological spaces, so we have the isomorphism as like homeomorphisms according to the definition of homeomorphism. And if we have a category of homotopy, okay, so homotopy equivalence होगा। और अगर हमारे पास कैटेगरी ऑफ कोसेट्स होगा, सो आइसोमॉर्फिज्म इज anti-symmetric assets are the isomorphism, okay, which implies that x is equal to y हो जाए जिसमें ये कंडीशन होल्ड करती है according to anti-symmetric condition. So let's read the definition of groupoid. अच्छा, यहाँ पर groupoid की definition देखते हैं कि groupoid is a category, ठीक है। category which is a morphism, which is in which every morphism, ऐसी category है groupoid जिसके अंदर हर morphism क्या होगा? This all the morphisms are isomorphisms. So we can say that they are isomorphisms, all morphism in category. So we can say कि ग्रुपोइड। अच्छा, ग्रुप क्या है? ग्रुप जो है हमारे पास, ग्रुप को भी हम डिफाइन करेंगे किसी वीडियो के अंदर के एज अ कैटेगरी, ग्रुप एज अ कैटेगरी देख सकते हैं। तो ग्रुप भी एज अ ग्रुपोइड होगी क्योंकि उसके अंदर हर मॉर्फिज्म एज आइसोमॉर्फिज्म होगा। इसके बाद देखते हैं, अच्छा ये फंडामेंटल ग्रुपोइड है, इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद सब कैटेगरी की डेफिनेशन है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास देख सकते हैं कि डी इज अ कैटेगरी एंड सी इज अ कैटेगरी। सो इफ डी इज अ कैटेगरी, सब डी इज सब कैटेगरी ऑफ सी डिफाइंड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द सब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसमें सब कलेक्शन हो गया, मतलब सी एक बड़ी कैटेगरी है, ठीक है। उसी में से हम एक छोटी कैटेगरी ले रहे हैं डी। तो इसके जो ऑब्जेक्ट्स है, सब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ कैटेगरी सी एंड सब कलेक्शन ऑफ मॉर्फिज्म्स होंगे इसके, ठीक है। मतलब आपके पास जो है कैटेगरी सी है, ठीक है। और आपने जो है एक कैटेगरी ले ली, कौन सी भाई? दिस इज डी कैटेगरी। तो इसके जो ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, द सब कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स होंगे, और जो इसके मॉर्फिज्म्स हैं, सब कलेक्शन ऑफ मॉर्फिज्म्स हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो है कैटेगरी डी के जो ऑब्जेक्ट, इसके अंदर कैटेगरी डी कंटेंट्स, सॉरी, सब कैटेगरी डी कंटेंट्स द डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ एनी मॉर्फिज्म इन डी। अच्छा, डी में देखें अगर कोई भी मॉर्फिज्म लेते हैं ना तो उसकी कोडोमेन और डोमेन लाजमी डी में बिलोंग होने चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे आपने ये देखें, ये लेट से ये सी था, ये बड़ा वाला ना, और आपने ये पोर्शन लिया भाई, ये दिस इज डी है, तो इसमें कोई मॉर्फिज्म मिला तो इस मॉर्फिज्म का को डोमेन और कोड डोमेन इसी में होना चाहिए, डी के अंदर, सी में। सी में तो होगा ही, लाजमी सी बात है कि दिस इज द सब कलेक्शन सबसेट ऑफ डी, सी। मगर डी में मौजूद होना चाहिए, वो यहाँ नहीं हो, ये ना हो कि एक्स यहाँ पर और वाई उसकी कोड में वहाँ हो, तो ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज नॉट अ सब कैटेगरी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैटेगरी, सब कैटेगरी, आप जो स्मॉल कैटेगरी ले रहे हैं, दूसरी कैटेगरी की सब कैटेगरी उस वक्त होगी कि हर मॉर्फिज्म का डोमेन और कोडोमेन होना चाहिए। देन इसके अलावा एवरी आइडेंटिटी मॉर्फिज्म बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, ठीक है। द आइडेंटिटी मॉर्फिज्म ऑफ एनी ऑब्जेक्ट belongs to the subcategory and the composable pair also belongs to, ठीक है। अब ये क्या चीज है देखें, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। लेट्स से हमारे पास देखें, यहाँ पर हमने कहा कि भाई ये दिस इज सी कैटेगरी, दिस इज डी कैटेगरी, क्या हो गया? सो दिस इज डी कैटेगरी। तो आप यहाँ जो एफ ले रहे हैं तो इसका एक्स और वाई इसी में होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा है कि हर एक्स के लिए जो आइडेंटिटी है वो बिलोंग करनी चाहिए इस आइडेंटिटी मॉर्फिज्म इसी में से। फिर लेकिन लेट्स सी आपके पास डी है और सी, ये आपके पास ये पूरा था सी, ठीक है। दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब देखें यहाँ कोई हमारे पास जैसे एक्स से वाई पर एफ है, ठीक है, वाई से जेड,
हमारे पास जी है वो इसी में। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैटेगरी जी ऑफ एफ भी होगा, तो जी ऑफ एफ डी में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। दिस बिलोंग्स टू सब कैटेगरी नॉट, अच्छा मतलब सी में तो होगा ही, लाजमी सी बात है, मगर डी में भी होना चाहिए। अगर डी में होगा तो फिर देन वी कैन से कि दिस इज द सब कैटेगरी, ठीक है। दोबारा से देखें सब कैटेगरी की डेफिनेशन, आपके पास ये सी कैटेगरी है, स्मॉल कैटेगरी ली हमने डी, इसको क्या, तो हर ऑब्जेक्ट, हर मॉर्फिज्म जो इसमें बिलोंग करता है उसकी डोमेन को डोमेन होने चाहिए, ठीक है। फिर हर ऑब्जेक्ट का जो आइडेंटिटी मॉर्फिज्म है इसी में बिलोंग करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ ऑब्जेक्ट है और उसका आइडेंटिटी नहीं है। फिर हमने कहा कि भाई एक्स वाई है, वाई से जेड एक मॉर्फिज्म है, एफ जी है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैटेगरी जी ऑफ एफ भी होता है, ठीक है। जी ऑफ एफ भी होता है। अब जी ऑफ एफ जो है ना, ये जो ये मॉर्फिज्म है ये भी डी में होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस डी, so we can say that D is a subcategory of C. Okay, so this is the definition of subcategory. So let's end this video. Allah Hafiz.